ہیں وہ اس کا آئینہ دکھا رہے تھے بچے کو. ہماری زندگی بھی جس طریقے سے آج ہم نوجوان ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے، والدین کو جزائے خیر عطا فرمائے. بھائی آپ لوگ خاموش بیٹھیے. بھائی صاحب، پیاری بہنوں، یہ بچوں کا پروگرام جو الحمدللہ کامیابی کے ساتھ اختتام کو پہنچ رہا ہے یا پہنچ چکا ہے. بیٹا خاموش بیٹھتے آپ لوگ، اچھے بچے بات نہیں کرتے، اچھے بچے. آپ نے میری بہن دیکھ رہی ہیں، میری ماں آپ دیکھ رہی ہیں، آپ نے صبح صبح بچے کو اٹھایا، اپنی لاڈلی بیٹی کو اٹھایا، مدرسے کو بھیجا اور مکتب کو بھیجا، جہاں پر استاذ نے محنت کی، پڑھایا، تربیت دی، سکھائے، اور آج الحمدللہ پروگرام پیش کرنے کے قابل ہوئے. سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، آپ نے بھیجا ہے. آپ نے سونے والی بچی کو، معصوم بچی کو، ننھی بچی کو، ننھے بچوں کو، نونہالوں کو، باوجود یہ کہ ان پر تعب ہے، جا نہیں سکتے، عذر کر رہے ہیں، آپ نے دین کی تعلیم کی خاطر مکتب کو بھیجا، مسجد میں پڑھائے جانے والے اس مدرسے کو بھیجا. اس کے بعد کہیں چل کر کے پروگرام الحمدللہ ہوا ہے. آپ ارادہ کریں گے بھائی سبھی، جیسے ہمارے حاجی محمد رفیع صاحب دامت برکت، اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، ان کے ارادوں کو پورا فرمائے. جیسے انہوں نے اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا تھا کہ ہم 100% محلے کے ہر گھر کے بچوں کو مکتب بھیجیں گے. کیوں میں بھیجیں گے؟ انشاءاللہ بھیجیں گے تو یہ نتیجہ ملے گا. بس الحمدللہ علماء اکرام کے اور جو نظام ہے، میرے علم میں نہیں کہاں تک منزل کو پہنچے ہیں. انعامات بچوں کو تقسیم ہونا ہے، جن کو جو نمبرات ملنا دے دیے گئے ہیں. اس علماء اکرام کی حاضری کی مبارک کڑی کا آخری حصہ، بلکہ وہ جو بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، آخری شخصیت ہم تمام کے محبوب اور بہت ہی خدمت گزار اور ملور کئی منڈلوں کے قاضی، اور جو حج و زیارت اور عمرے کے لیے سفر احباب کو کراتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں. کئی لحاظ سے مولانا کی خدمات پھیلی ہوئی ہیں، جن کے اوقات نماز بھی شائع ہیں اور جگہ جگہ ان کا فیض ہے. میری مراد آپ سمجھ رہے ہوں گے، حضرت مولانا قاری الحاج مشتاق احمد صاحب مادنی، ان کا خطاب ہونا ہے. یہ اعلان تو انتظامیہ کو کرنا تھا، وہ اپنے کام میں مشغول ہیں، ان کو بالکل بے خبر ہیں. کوئی بات نہیں، الحمدللہ میں مولانا کو دعوت دے رہا ہوں. تشریف لائے مولانا، آپ کے خطاب ثواب سے نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر جلسہ مربی حضرت مولانا الحاج ذاکر احمد صاحب رشادی دامت برکاتہ، میرے استاد بھی ہیں، میرے ہر موڑ پر رہبری کر کے ایسا رہنا کر کے آج تک بھی مجھے سامنے کھڑا کر کے راستہ بتاتے چلتے ہیں. یہ میرے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے. اور دوسرا ہے کہ حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب آپ حضرات جانتے ہیں، ان کا فیض میں بھی اب آنے کے بعد میں تعجب میں پڑ گیا. اتنے کونے کونے میں بھی مولانا پہنچ چکے ہیں اور وہاں پر کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت کے کام کو اور آگے بڑھائے اور ہاتھ پیر میں اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرمائے، نظر بد سے بچائے. بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آ گئیں، بس ایک بات بول کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. علم کے بارے میں حضرت مولانا سجاد صاحب بڑی بڑی اشعار وغیرہ پیش کرے ہیں. علم ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اس چیز کو اپنے اندر جب لے لیتا ہے تو حسن کا نور آدمی کے دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اس نور سے آدمی وہ جہالت کے اندھیرے کو دور کر دیتا رہتا ہے. اس کی زندگی پوری کی پوری نورانی بنتی ہے. علم ایک نور ہے، علم ایک نور ہے.
अपने अंदर दाखिल करना है उसे। आपको एक बात बताता हूँ, खिलाफत उस्मानिया में आखिरी कड़ी जिनका नाम अब्दुल मजीद है, सुल्तान अब्दुल मजीद, उनके ज़माने में एक ईसाई आया था जिसका नाम साइरस हैमलिन था। बस 2 मिनट की बात बताकर ख़त्म कर देता हूँ, बस गौर से सुने भाई, इल्म की कितनी ज़रूरत है। साइरस हैमलिन ने सुल्तान अब्दुल मजीद के पास गया और बोला कि उस ज़माने में टेलीग्राम का ईजाद हुआ था। टेलीग्राम सबसे पहले उसे मालूम करे थे टेलीग्राम को। सुल्तान अब्दुल मजीद के पास गया, साइरस हैमलिन ने बोला कि बहुत जल्द और बहुत कम वक्त में कई किलोमीटर के दूर पर रहने वाला आदमी तुमसे बात कर सकता है, उसकी आवाज़ को तुम सुन सकते हो और जो बातें वो कहना चाहता है वो तमाम तुम यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो ताज्जुब में हो गया सुल्तान अब्दुल मजीद। तो सुल्तान अब्दुल मजीद को एक जगह बिठाया और कई किलोमीटर के दूर पर दूसरे आदमी को रखा, वहाँ पर रहकर कुछ टाइप करता है। टाइप करने के बाद वो बातें लिखकर चीटी में भेजता है। यहाँ पर सुल्तान अब्दुल मजीद वो बातें सुनते हैं। जो बातें उसने कहा वही बातें हूबहू इसने यहाँ पर सुना है। बहुत खुशी हुई। एक बात पहुंचाने के लिए घोड़ों का सवार करना पड़ता है, कई दिन सफ़र करना पड़ता है। एक लहदे में उस आदमी की बात मैं सुन लिया हूँ, ये बहुत अजीब चीज़ मालूम होती है। तो खुशी में आ गया सुल्तान अब्दुल मजीद। तो उस वक्त मैं साइरस हैमलिन से पूछा, मैं इस वक्त में मेरा दिल बहुत खुश है। बजंतन एम्पायर है वो, तुर्की का जो बादशाह रहता है उसे बजंतन एम्पायर कहते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल जिसे कहते हैं, तुर्किस्तान। इस ज़माने का जो डोनाल्ड ट्रंप हो या जो बाइडेन हो, जो जिसका मर्तबा है, वैसा उस ज़माने में अब्दुल मजीद की हुकूमत की थी। बहुत बड़ा आदमी था। खुशी में आकर बोला कि आज मैं बहुत खुश हूँ, पूछ तू क्या चाहता है। अगर हम जैसे लोग होते तो वहाँ पर किसी और जैसा होता तो कुछ न कुछ माल मांग लेता, लेकिन वो ईसाई था साइरस हैमलिन। उसने कहा मुझे आप ईसाई मिशनरी स्कूल ओपन करने का परमिशन दे दो, मुझे ईसाई मिशनरी स्कूल ओपन करने का परमिशन दे दो, मुझे कुछ नहीं मांगा हूँ। और अब्दुल मजीद तो उससे वाक़ियत नहीं थी उसने कहा जाओ तुमकी इजाज़त दे दी जाती है। आज भी रुमालिया हिसार जो तुर्किस्तान की इस तरफ है, पहाड़ों के बाद में, वहाँ पर उसने एक कॉलेज बनाया। तो उसके पास कुछ पैसा नहीं था। जैसे ही सुल्तान अब्दुल मजीद के पास उसने इजाज़त ली, फौरन अमेरिका में रहने वाला रॉबर्ट को खत लिखा, उसका दोस्त था, बड़ा मालदार था, रिच पर्सन था, उसको खत लिखा और कहा कि मुझे यहाँ पर ईसाई मिशनरी का स्कूल ओपन करने का मौका मिल गया, इजाज़त मिल गई है। मैं तुझे मांगता हूँ, बेग, इंग्लिश में बहुत अच्छे अंदाज में लिखे हैं, मैं तुझे मांगता हूँ, मुझे चंदा दे दे, स्कूल ओपन करना है। वो भी इसने ईसाई था, उसने फौरन कई लाख रुपए का उस जमाने में पैसा भेजा। तो वहाँ पर स्कूल चलाई गई। तो 40 साल की मुद्दत में खिलाफत उस्मानिया जैसे इस्लामी हुकूमत ईसाईयत में बदल गई, सिर्फ 40 साल की मुद्दत में। ये पूरा का पूरा क्यों बदला? मुसलमानों से मुकाबला करने के लिए हथियार उठाएंगे, बम डालेंगे तो खत्म नहीं होंगे। आज भी यूनाइटेड अमेरिका जो है ना, तालिबान से हाथ मिलाया है और कहा कि आपसे हम नहीं लड़ सकते, इत्तिहाद करके बैठे हैं। ओपन होने बड़े बड़े आर्टिकल्स में लिखा गया है, जंगो जिदाल से ये कौम कभी भी हमसे नहीं हारेगी। इनको हराने के लिए क्या करना पड़ेगा? इल्म को लाना पड़ेगा। इल्म, पढ़ाई, नॉलेज, एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि 40 साल की मुद्दत में जो सहाबा की औलाद थे, वही औलाद मस्जिदों से, मीनारों से माइक निकाले गए और औरतों के जिस्मों से पर्दे उठा, बुर्का निकालकर नंगे फिराने के लिए मजबूर किया गया। कौन थे वो? सहाबा इकराम की औलादें थे। वो खिलाफत उस्मानिया की औलादें थी। दीन निकल गया, पढ़ाई निकल गई, सब कुछ निकल गया। ईसाईयत उनके अंदर गालिब आ गई। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को ईसाई स्कूलों में पढ़ाकर पूरी तरह मदरसों को बंद कर दिया गया। उस वक्त में मुजद्दिद अल्फी सानी सरहिंद शेख अहमद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दीन वहां पर काम करते थे। उन्होंने सोचा क्या करना है, यहाँ से मशहूर हुआ वहां पर से। फिर वहां पर क्या किया गया, जो वहां पर जो बादशाह था उससे अग्रीमेंट लिया गया, आइंदे जो हुकूमत आएगी हम तुझे तरफदारी करेंगे, लेकिन तू हमारी बात सुनना पड़ेगा। उसने कहा क्या क्या पूछने का हो? हम वही चाहते हैं जिस जमाने में साइरस हैमलिन ने ईसाई मिशनरी खोलने के लिए, स्कूल खोलने परमिशन मांगा, हम आपसे मांगते हैं कि मदरसा खोलने के परमिशन दिया जाए। तो मदरसा खोला गया। तो आज तैयब उर्दुगान
जो तुर्किस्तान का सदर बना हुआ है, ये उसी मदरसे से फारिग हुआ बच्चा है। वो आज पूरी दुनिया के अंदर जिसका नाम चमक रहा है। बताना ये चाहता हूँ कि इल्म बहुत अहम चीज है, एजुकेशन बहुत अहम चीज है। जब तक हमारी कौम पढ़ी लिखी नहीं होती तब तक हमारे ऊपर कोई तरस कर नहीं आएगा। हमारे बच्चों को आईएएस ऑफिसर बनाना है, सिविल्स में भेजना है उनको, आईआरएस ऑफिसर बनाना है, बड़े बड़े ओहदे में भेजना है उनको। तो 4 साल 5 साल 10 साल का बच्चा हो जाता है तो उसको काम करने पर लगा देते हैं और उसकी कमाई पर माँ बाप यहाँ पर बैठकर मजे उड़ाते रहते हैं। ये जुल्म हो रहा है, जुल्म, इसको रुकाना है। आप भूखे रहें, आप भूखे रहें, भूख बर्दाश्त करें, उस भूख का पैसा बच्चों पर लगाए, बच्चों को पढ़ाई पर लगाए। तो साथ ही साथ आप दीन इल्म जो मदारिस मकातिब का आज इतना खुशनुमा नूरानी मंदिर हम देखते हैं, आज ऐसा खुशनुमा मंदिर है, इसके लिए बड़ी मेहनतें हुई हैं, कई महीनों की मेहनत है, आज ये रंग लाई है। आज हम लोग बहुत खुश हैं इन लोगों को बच्चों के इम्तिहान लेते हुए। मैं खुद बहुत खुश हूँ। मेरे उस्ताद हजरत मौलाना जाकिर अहमद साहब मुझे याद फरमाया, बुला लेकर आया, वरना तो मेरे किसी और जगह प्रोग्राम था, मैं महरूम हो गया था, महरूम हो जाता था अगर मैं यहाँ पर नहीं आता था। इसलिए आप गुम्बद लतीफ़ा के अंदर जितने अहबाब हैं, जितने उलमाए कराम आए हैं, उनसे मेरी ये दरख्वास्त है, जो बच्चे जो यहाँ पर जो पढ़ते थे, इनके पढ़ने के अंदर हमने कुछ ऑब्जर्वेशन किया। वो क्या था वो कि वो बच्चों का जो प्रोनाउंसिएशन है, अल्फाज का लहजा, मैं बड़ी फख्र से हर जगह बोलता हूँ, उर्दू बोलना है तो हमारे जाकिर जैसे बोलना है, एकदम जैसे तुझे अल्फाज बोलते हैं, बड़ी फख्र होती है। ऐसे अल्फाज बात करते हैं जो लखनऊ के अंदाज में बात करते रहते हैं। तो बात करने का अंदाज, जैसे कुछ लोग यहाँ पर बोले मुसलमान, मुसलमान, मुसलमान नहीं है, ये बच्चे की गलती नहीं, ये पढ़ाने वाले उस्ताद, माफ करना उस्ताद, मैं माफी चाहता हूँ, वो मुसलमान पढ़ानी चाहिए उसको। बार बार मैं तालीमुद्दीन में जब पढ़ा रहा था तो उस वक्त में जब लिखने में कुछ गलतियां होती थी, हज़रत मुझे तरबियत दिला, ऐसा नहीं, ऐसा लिखना है, ऐसा बोलना है बोलते। तो मैं आपसे कहता हूँ, ये बच्चे हैं, इनको अभी से बनाने का वक्त हमारे सामने दिया गया है, हम बनाना है। इस वक्त में हम कलीमे बिगाड़ दें उनके, उर्दू का लहजा बिगाड़ दें उनकी, यही लहजा यही आखिर तक चलेगा, फिर बदलेंगे नहीं ये लोग। इसलिए बोलने के वक्त में, कुछ पढ़ने के वक्त में, कुछ हजरात यहाँ पर कुरान शरीफ भी पढ़ रहे थे, पढ़ने के वक्त में तजवीद का कोई खास लिहाज नहीं था। ये तमाम का तमाम मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा की जिम्मेदारी बनती है कि उनके लबो लहजे पर खास निगरानी किया जाए कि हम चलते हों, बोलते हों, एक शान होनी चाहिए मुसलमान की। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम तमाम को नेक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और जो अगर कुछ बातें आगे पीछे हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिए। और बड़े आदमी को हुक्म था इसलिए मैं खड़ा हो गया, वरना तो बड़े आदमी के सामने बात करने की इजाज़त भी मुझे नहीं। अल्लाह ताला हम तमाम नेक अमल